chapter number 13, session number 2. So we are going to start today exercise 13.2, where we are doing questions related to surface area of the cylinder. Okay, ready? Okay, open your book, open your copy and with pen and do the problems with me. Question number 1. The curved surface area of the right circular cylinder of the height 14 is 88. Find the diameter of the base of the cylinder. Here they are asking diameter and we have given the curved surface area. What is the formula? 2 pi r h is equal to 88. We have been given h, so we have to find r. ओके, डू द कैलकुलेशंस. देखो जल्दी जल्दी सीखो. यहाँ मैंने यहाँ पे काटा 14 को. सो 88 r इज इक्वल टू 88. r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. व्हाट दे आर आस्किंग इज द डायमीटर. सो d इज इक्वल टू 2r. द आंसर इज 2 सेंटीमीटर. यस, डू एवरीबडी डू इट विथ मी. Question number 2. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter. Height हमको दिया है 1 meter, diameter 140 centimeter. From a metal sheet, how many square meter of the sheets are required for the same? You have to calculate the total surface area. Total surface area. सबसे पहले क्या करोगे? H is equal to 1 meter. You can make it 100 centimeter. Diameter हमको दिया, उसे रेडियस निकालना. डायमीटर से you take care कि डायमीटर दिया हुआ है, नहीं तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी. So area of the sheet required is total surface area 2 pi r h plus 2 pi r square. फॉर्मूला याद रखने का भी टेक्निक मालूम होना चाहिए, तो आप सोचोगे क्या है सर. फॉर्मूला इस तरह से याद रखो. ओके, डू 70 प्लस 100, ये इसको काटा 10, 440 into 170. So you have got 74,800 centimeter square. Now convert into meter square. Convert it into meter square. Divide by 100 into 100. You know it very well. 1 meter is equal to 100 centimeter. तो यहाँ स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट में बना कन्वर्ट किया है तो डिवीजन करना पड़ेगा, और स्क्वायर इसलिए 2 बार करना पड़ेगा. सो ये 20 से 20 कट गया. Answer is 7.48 meter square. Please, everybody, do it. Do it. कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशंस में भी नहीं होनी चाहिए. Question number 3. A metal pipe 77 centimeter long, inner diameter is 4 and outer diameter is 4.4. Find the inner curved surface area, find the outer curved surface area and find the total surface area. ये पाइप है और इसका भी कुछ थिकनेस है. जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इनर वाला भी निकालेंगे, आउटर वाला भी निकालेंगे, और जो उसका मोटा है ना थिकनेस, वो भी तो हमको निकालना पड़ेगा. ऊपर भी है नीचे भी है. गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. फिगर बनाइए. R1 इनर डाया 2 सेंटीमीटर, आउटर डाया आउटर रेडियस, डाया नहीं, आउटर रेडियस, डाया दिया हुआ है 4.4/2. आउटर रेडियस हो गया 2.2 सेंटीमीटर. ठीक है. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi r1h निकालिए. 2 pi r1h 968
सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर 2 pi r to h। करिए करिए कैलकुलेशन फास्ट करिए करिए, डू इट। पॉइंट हटा के 10 लाइए। थोड़ा इजी करने के लिए मैंने क्या किया, 11 इंटू 11 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर थोड़ा इजी हो गया, मेरे को थोड़ा टाइम कम लगा। आप भी सीखो। आउटर भी आ गया, अब मुझे टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालूंगा? सो इनर सरफेस कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस अभी मोटाई निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन वो अंदर से होलो है तो 2 पाई आर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस 2 पाई r1 स्क्वायर निकालिए। ये है थोड़ा कैलकुलेशन। अब मेरे पास आया 2.2 और 2, मुझे स्क्वायर करना है तो कर सकता हूँ। आई कैन डू द स्क्वायर ऑफ 2.2, 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। वट एवर वे, कैसे भी करो, कैलकुलेशन करो। हाँ, मेक द कैलकुलेशन इजी एंड फास्ट। सो आई एम गेटिंग 2038.08 centimeter square. Yes, everybody. Inner radius, inner curved surface area, outer curved surface area, and this is now I have to calculate the total surface area, for which I have to apply this formula. So you calculate this and you will get the answer. Okay, सभी बच्चे करेंगे। Question number 3. Question number 4. The diameter of the roller is 84 centimeter. Diameter. Length. It takes 500 complete revolution to move once over to level the playground. Find the area of the playground in meter square. अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। We have given h, we have given diameter, make it radius. Curved surface area 2 pi r h। करिए, do the calculation। कैसे काटना है काटिए। 12 into 22 into 120, 12 into 12 into 220। देखो मैंने कैसे, मुझे पता है 12 into 12 मुझे आता है, इसलिए मैंने इसको जरा इसको 12 को अलग निकाल लिया और 10 को उससे जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को आ गया 144 इंटू 220। अभी मैंने कैलकुलेशन रोका है क्योंकि अभी मेरे को आगे कुछ आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ आएगा। इन 500 रिवोल्यूशन इट विल कवर, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 500 कीजिए, डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कीजिए टू कन्वर्ट इंटू मीटर स्क्वायर। करिए, 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0, इसको काटिए, 5 से 2, 2 से इसको 11, डायरेक्ट 144 इंटू 11, 1584 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड। कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां मैंने इसको रोका तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, फास्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ए सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 3.5 मीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग the curved surface of the pillar of rupees at the rate of rupees 12 rupees 50 paisa per meter square। आपको डायमीटर दे रखा है सेंटीमीटर में और रेट दिया हुआ है मीटर में।
हमको कर्व सरफेस निकालना है मीटर में। चलो, योर हाइट इज इक्वल टू दिस, डायमीटर 50 सेंटीमीटर हो गया 0.5, रेडियस 25 हो गया इसका ड्यू, तो ये हो गया रेडियस 0.25 मीटर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच निकालिए। 2 पाई आर एच, मैंने क्या किया, यहां डायरेक्ट डायमीटर लिख दिया क्योंकि मुझे मालूम है 2 पाई आर को 2r इंटू पाई एच लिख सकता हूं, तो ये मेरा बन जाता है पाई इंटू डी इंटू एच। तो कभी कभी कैलकुलेशन बचाने का भी ट्रिक आना चाहिए। मेरे को 2r तो मालूम है, डायरेक्ट डी लिख दिया मैंने, तो थोड़ा मेरा कैलकुलेशन इजी हो गया ना। चलो करो। यस, 11/2 मीटर स्क्वायर इज माई कर्व सरफेस एरिया, और इससे डायरेक्ट मुझे मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग से। करिए मल्टीप्लिकेशन। 68.75 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दैट सिलेंडर। क्या किया मैंने, थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने पाई डी एच कर दिया, आप भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि ये मीटर है तो ये भी मीटर में चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन, सभी ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, if the radius of the base is this, find the height. Very easy करो। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू दिया है 4.4, रेडियस हमको दिया हुआ है, एच हमको निकालना है बच्चों, कुछ भी नहीं है। करिए कैलकुलेशन बच्चों, डू इट फास्ट, डू इट विथ मी। मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको आता है, लेकिन स्टिल यू डू विथ मी एंड फास्ट, डू इट फास्ट। कैसे आंसर फास्ट निकालना सीखो, सीखो। H इज इक्वल टू 1 मीटर, आंसर बहुत अच्छा, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। इनर डायामीटर दे रखा है, 10 मीटर उसकी हाइट दे रखी है, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया इज दिस, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया डी डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, मैंने इसको पाई डी एच कर दिया, देखो आपके लिए फटाफट किया, तो 3.5 डिवाइड कर दिया जल्दी से, तो इसको पॉइंट हटाया, 10 7 5 जा कर दिया, एंड डायरेक्टली आंसर आया 110 मीटर स्क्वायर मेरे को आ गया कर्व सरफेस एरिया। कॉस्ट ऑफ प्लास्टर मल्टीप्लाई किया 40 रुपीज से। वेरी फास्ट एंड वेरी इजी आंसर, वेरी इजी। कितना जल्दी जल्दी करो बताओ, जल्दी जल्दी करो। डू इट विथ मी। क्वेश्चन आपके साथ हो जाना चाहिए कि सर यस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ जल्दी से। इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ओहो, टोटल रेडिएटिंग सरफेस, यहाँ थोड़ा लेंथ जो दिया हुआ है ना वो तो दिया है मीटर में, डायमीटर दिया है 5 में, थोड़ा कन्वर्शन करना पड़ेगा। सो हाइट इज इक्वल टू दिस एंड डायमीटर इज इक्वल टू दिस, मैंने इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.05 मीटर। बस इतनी छोटी छोटी बातें ही है, वही मैं सिखा रहा हूँ, सब छोटी छोटी बातें। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, मैंने लिख दिया पाई डी एच, करो जल्दी जल्दी। 22/5, इसको 5 से का 25 आया, फिर 25 को 22, ओके पहले 4 से काटा, अच्छा वेरी गुड। इसको क्या किया, पहले 100 को यहाँ से काटा,
4 से तो 25 आ गया, फिर 5 से काटा तो 5 आ गया। अच्छा, वेरी गुड। 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर। बोलो कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ, है कि नहीं? करना क्या था, बस ये कन्वर्शन करना था। बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। Find the lateral or curved surface area of the closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter, okay, and 4.5 meter high. How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? Okay. लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहला काम तो ये करना है। डी दे रखा है, एच दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई डी एच। करो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच या पाई डी एच। डी दिया है तो हमने क्या डी लगा दिया। 594/10 59.4 मीटर स्क्वायर। अब चक्कर ये है कि सबसे पहले, अब ये क्वेश्चन में कुछ विशेषता है। पहले तो स्टील कितना चाहिए ये पूछा है, फिर पूछा है 1/12 टाइम्स वो वेस्टेज होता। अब ये क्वेश्चन में दम है, ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो मैंने 2 पाई को पाई डी कर दिया, आर प्लस एच, यहाँ मैंने आर 2.1 लिखा, ध्यान रखना। जरा इसको सॉल्व किया, इसको 10 नीचे लिया, 6 ये 6.6 जोड़ लिया, थोड़ा इजी हो गया। 132 × 66 ये मेरा एरिया आया एक बार तो टोटल। लेकिन 1/12 टाइम्स इसको वेस्टेज निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 1/12 part of the steel actually wasted, so total steel used is equal to total steel used is x। हमने माना टोटल स्टील जो यूज किया गया था वो x यूज किया था, और x माइनस x/12 वेस्ट हो गया, x/12 वेस्ट हुआ था। तो बचा कितना, x माइनस x/12, क्योंकि लगा कितना x, हमको क्या निकालना है x। ये समझने वाला बात है, बस ये समझ लो आप। 1/12 टाइम्स जो माइनस करना था ना, ये समझने वाला मामला है। और यहां मैंने अभी कैलकुलेशन देखो क्या किया, इसको ये यूज किया है। मैं चाहता तो इसको यूज कर सकता था, पर मैंने इसको यूज किया है क्योंकि मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होने वाला है। एलसीएम ले लिया 11/12। चलिए x इज इक्वल टू, चलिए ये काटा 6 हो गया, 132 × 72 9504/100 95.04 मीटर स्क्वायर एक्चुअली स्टील नीडेड। x इज इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर हमको जब टोटल स्टील चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया निकाला, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर 1/x वाला माइनस किया, इसको सॉल्व किया, x इज इक्वल टू आ गया। You can pause the video, you can do it yourself, you can check it, you can check the calculations, you can do the practice by watching and by looking the calculations also. Question number 10. You see the frame of lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm, height of 30 cm, margin of 2.5 cm to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required to covering the lampshade. एक लैम्प शेड है, ये फिगर थोड़ा सा अलग बनाया है, अपन अलग बनाते हैं थोड़ा सा। फिगर क्या बनाया है, ये लैम्प शेड है ना, ये 30 मीटर का हाइट है, लेकिन जो 2.5 मीटर का कपड़ा इधर से और 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का कपड़ा दोनों तरफ से लटकाना है।
तो टोटल हाइट में मान लूंगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 35। बस ये समझने वाली बात है। 35 सेंटीमीटर मेरे को हाइट मिल गई कपड़े की। डायमीटर दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया पाई डी एच निकालिए 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया? कुछ भी नहीं। समझे क्वेश्चन को समझना। कभी कभी बच्चे लोग क्वेश्चन को भी नहीं समझ पाते। तो कुछ भी नहीं है, 2.5 मीटर का कपड़ा दोनों तरफ से फोल्ड करना था, 30 मीटर की हाइट थी, तो मैंने उसको जोड़ दिया, मेरी नई हाइट बन गई 35। बस फिर तो पाई डी एच कर दिया मैंने, 2 पाई आर एच करो, पाई डी एच करो। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। Student of Vidyalaya were asked to participate in competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be the radius 30 centimeter, height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply competitor with cardboard. If there was 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? पेन स्टैंड बनाना है, उसके लिए कार्डबोर्ड चाहिए, सरफेस एरिया निकालना है, पर पेन स्टैंड का ऊपर का फेस खुला होता है, इसलिए वो काउंटिंग में नहीं आएगा। बस हो गया क्वेश्चन। निकालिए टोटल सरफेस एरिया, हमको दिया हुआ है रेडियस, हमको दिया हुआ है हाइट, हमको निकालना है टोटल सरफेस, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, क्योंकि ऊपर से खुला है। इसको सॉल्व किया, पाई आर इसको ले लिया, कॉमन लिया, 2h प्लस आर, पाई और आर ले लिया, 2 इसको ले लिया, 2h अंदर ले लिया, पर कॉमन लिया, तो ये हो गया 66/7, ये हो गया 21 प्लस 3, 66 इंटू 24/7। ये मैंने अभी कैलकुलेशन यहाँ रोकी है, क्योंकि मेरे पास 35 बनाने हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई 35 यहाँ करूँगा, यहाँ 7 से कट जाएगा, तो डायरेक्टली मेरे पास बहुत इजीली आंसर आ रहा है 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए ना, समझ के कर रहे हो ना, और कैलकुलेशन भी कितना स्टाइल से कर रहे हैं अपन। देखो यहाँ अपन डायरेक्ट इसको एक बार रोक दिया था यहाँ पे, फिर यहाँ कट गए, काटने में इजी रहा ना। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तब हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, वो उसकी तैयारी करके आइए। अभी 13.2 मेरा खत्म हुआ है, सभी बच्चों को साथ मैंने क्वेश्चन किए। नाउ एवरीबॉडी डू इट अगेन, डू द कैलकुलेशन अगेन। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, कभी मिस्टेक नहीं होगी, और बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेयर विल वी स्टडी अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ओके।